The topic I have been talking about is walking in the perfect plan of God. जिस विषय के मैं आपसे बात कर रहा था वो ये था कि परमेश्वर की सिद्ध योजना में चलना, Walking in the perfect plan of God. परमेश्वर की सिद्ध योजना में चलना. And you can see the pictures behind me talking, and you can, like, pictures will help you more to understand what और God आप is देख doing. सकते हैं मेरे पीछे इन चित्रों को जो आपकी और मदद करेगा इस बात को समझने में. Hallelujah. हालेलुया. Walking. Somebody say walking in the plan of God. In the कोई perfect कहे- plan of God. Walking in the perfect plan of God. Amen. परमेश्वर की सिद्ध योजना में Somebody चलना. say I'm going to walk in the plan of God. कोई कहे मैं परमेश्वर की योजना में चलने वाला हूँ. Amen. Amen. Not my plan, मेरी योजना में नहीं, but God's plan. लेकिन परमेश्वर की योजना में. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Precious friends, और मेरे प्रिय Christmas मित्रों, is more than a celebration. क्रिसमस एक उत्सव से बढ़कर है. It's a reminder that God's perfect plan is at work. ये एक यादगार है, एक स्मरण है कि परमेश्वर की सिद्ध योजना काम कर रही है. In the midst of pain, suffering, and uncertainty. दर्द, पीड़ाओं और नाउमीदी के बीच में. The story of Mary, Joseph, and others in the Nativity reveals that how God's purpose prevail when we trust and obey and surrender to Him. यीशु मसीह के जन्म की कहानी में मरियम, यूसुफ और बाकी सभी लोग इस बात को दिखाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा होता है जब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we are going to explore more today that how you and me can walk in the perfect plan of God. और आज हम इसके बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार से आप और मैं परमेश्वर की सिद्ध योजना में चल सकते हैं. Last week I talked about the pain and suffering in God's perfect plan. पिछले हफ्ते मैं आपसे बात कर रहा था परमेश्वर की सिद्ध योजना में दर्द और पीड़ाओं के बारे में. Mary and Joseph endured significant challenges as a part of God's perfect plan. मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर की सिद्ध योजना के कारण बहुत सी सताव और पीड़ाओं को सहा. Many times we think if I'm suffering, if I'm going through a pain, maybe I'm deviated from God's plan. Maybe this is not what God wants me. Sometimes when poverty is there, when we have financial crisis in the house, we think that I'm not walking in the plan of God. कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं सब सह रहा हूं, अगर मैं झेल रहा हूं, मैं परेशानियों के बीच से गुजर रहा हूं, तो शायद मैं परमेश्वर की सिद्ध योजना में नहीं चल रहा हूं, मैं उससे बाहर हूं. अगर मैं तंगी में हूं, अगर मैं कठिनाइयों में हूं, तो शायद मैं प्रभु की सिद्ध योजना में नहीं हूं. No, 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 नहीं no. नहीं, ऐसा नहीं है. Jesus died. यीशु मरा. Jesus was tortured. यीशु को सताया गया. Jesus was persecuted यीशु को ताड़नाएं दी गई. in the perfect plan of God. परमेश्वर की सिद्ध योजना में. Hallelujah. हालेलुया. Not a comfort life. एक आरामदायक जीवन नहीं था, Not a rosy cozy bed. और बहुत ही एक आरामदायक बिस्तर नहीं मिला उसे. But it was a plan of God that Jesus must suffer the pain, must suffer the torture by the Pharisees and by the Roman soldier to fulfill the perfect plan of God. लेकिन ये परमेश्वर की ही योजना थी कि फरीसियों के द्वारा, रोमी सरकार के द्वारा यीशु को सताया जाए, उसको मारा जाए, ताकि परमेश्वर की सिद्ध योजना पूरी हो सके. If you're poor today, अगर आज आप गरीब हैं, don't think it's not God's plan. ये मत सोचिए कि परमेश्वर की योजना नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. I'll show you in a moment. मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा. If you're not able to take good clothes, अगर आप अच्छे कपड़े ले नहीं पा रहे हैं, if you're not able to buy the good ones, अगर आप अच्छे कपड़ों को खरीद नहीं पा रहे हैं, if you are vulnerable to your situation and circumstances, अगर आपको लग रहा है कि आपके हालात बहुत खराब है और बदतर हैं, no, it's not that you're not walking in the God's plan. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब परमेश्वर की सिद्ध योजना में आप नहीं चल रहे. Even if you're buying the second-hand clothes, अगर चाहे आप सेकंड हैंड कपड़े भी ले रहे हैं, you are still walking in the plan आप of तब भी God. परमेश्वर की योजना पे चल रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Because something is going to come up. क्योंकि कुछ है जो आने वाला है. Somebody says something is going to come कोई up. कहे कुछ है जो आने वाला है. Amen. Amen. Something is going to come back. कुछ वापस आएगा. The suffering of today, वो आज की ताड़नाएं, the mess of today आज का जो तंगी है, will become a message for वो tomorrow. कल की गवाही बन जाएगी. The test you are facing today, जो परीक्षाएं आज आप सामना कर रहे हैं, it will become a testimony वो tomorrow. कल गवाही बन जाएगी Oh, आपकी. come on, somebody shout और कोई जोर से hallelujah. कहे हालेलुया. Amen. 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 Oh,
Oh, precious people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we think हमें लगता है if I'm suffering, अगर मैं झेल रहा हूँ, if I'm in pain, अगर मैं दर्द में हूँ, if I'm sick, अगर मैं बीमार हूँ, oh, I'm not in perfect plan मैं of God. परमेश्वर की सिद्ध योजना में नहीं हूँ। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, Your sickness, आपकी बीमारी, your pain, आपका दर्द, your suffering, आपका जो झेलना है, your every problem that you're going through, आपकी हर एक परेशानियां जिससे आप गुजर रहे हैं, every challenges हर that एक you're going through, चुनौतियां जिससे आप गुजर रहे हैं, it shows that you're walking in the will of God. वो ये दिखाता है कि आप परमेश्वर की सिद्ध योजना में चल रहे हैं। But I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Don't try to fix your poverty by yourself. अपनी गरीबी को अपने आप से ठीक करने की कोशिश ना करें। Some people say, कुछ लोग कहते हैं, oh, let me go out. और ठीक है मैं बाहर चले Let me आता go हूँ, to the foreign मैं land किसी विदेशी to देश में चले आता fix हूँ my poverty. ताकि मैं अपनी गरीबी को हटा सकूं। No, 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 नहीं no. नहीं नहीं, Let God fix your होने poverty. दीजिए परमेश्वर आपकी गरीबी को मिटाए। Let God fix your poverty. होने दीजिए परमेश्वर आपकी गरीबी को मिटाए। Hallelujah. हालेलुया। Let me do some overtime. और मैं कुछ ओवर टाइम काम कर लेता Let me हूँ, do this job. मैं ये वाली नौकरी कर लेता Let me हूँ, do that. मैं वो वाला काम कर लूं, Let me lie. मैं झूठ बोल दूं थोड़ा, Let me earn more money थोड़ा पैसा और कमा लूं मैं, with the wrong motive. थोड़ा गलत काम करके। Don't fix it. उसे मत करिए, आप मत करिए। Your mess will become more messier. जो आपकी तंगी है वो और ज्यादा आप उसमें तंग हो जाएंगे। The bad will become more worse. जो बुरा है वो बदतर हो जाएगा। Let God deal with your होने poverty. दीजिए परमेश्वर आपकी गरीबी को मिटाए। Let God deal with your pain. परमेश्वर आपके दर्द को मिटाए। Let God deal with your suffering. परमेश्वर को आपकी ताड़नाओं को मिटाने दीजिए। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। The church today आज की कलीसिया have forgotten one word. एक शब्द वो भूल गई है। The church today आज की कलीसिया have forgotten one word. एक शब्द भूल गई है, And that word is, और वो शब्द है, it's not by might, ना तो बल से, it's not by power, ना तो शक्ति से, but by the Spirit of God. परंतु परमेश्वर की आत्मा के But by द्वारा। the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Somebody say by the Spirit of कोई God. कहे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Somebody say by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कोई It's कहे not by ना might, तो बल से, it's not by ना power, तो शक्ति से, it's not by your wisdom, आपकी बुद्धि से नहीं, it's not by your planning, आपकी योजनाओं से नहीं, it's not by your strategy. आपकी रणनीतियों से नहीं। The Bible says बाइबल कहती it है is by the Spirit of God. ये परमेश्वर की आत्मा से होगा। Let the Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा, let the Spirit of God परमेश्वर की आत्मा के wipe द्वारा out your tears, होने दीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपके आंसुओं को Heal your पोंछे, sickness. आपकी बीमारियों को चंगा करे, wipe out your pain and आपके suffering, दर्द और आपकी ताड़नाओं को मिटाए, wipe out your poverty, आपकी गरीबी को मिटाए, and you come out as a victorious person. और आप बाहर निकल कर जयवंत के रूप में खड़े हो Somebody shout जाए। कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Oh, Bridget, help me, help me, help me, help me. ओ Help me. मेरी मदद करे, मदद करे, मेरी मदद करे। God is talking to somebody. परमेश्वर किसी से बात कर रहा God is है। talking to somebody. परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। Your pain आपका दर्द is my plan. वो उसकी योजना है। Your test आपकी परीक्षाएं is my plan. वो उसकी योजना है। Your infertility, आपकी निर्बलताएं, your infertility आपकी निर्बलताएं is my plan. वो उसकी योजना है। Your inability, आपकी अयोग्यताएं, your vulnerability आपका झेलना is my plan. वो उसकी योजना है। Wait for your season. अपने समय का इंतजार Wait करें, for your time. अपने मौसम का इंतजार करें। Don't mess up like Abraham. अब्राहम के समान आप जल्दबाजी ना करें। La prostono Roma kashata rabastono. It is God ये परमेश्वर है who gave promise to Abraham. जिसने अब्राहम को वादा दिया, I will give you a son. मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। It was his plan. वो उसकी योजना थी, It was his promise. वो उसका वादा था। Abraham should have waited for God. अब्राहम को परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए था, But his own wife, लेकिन उसकी अपनी पत्नी she was very impatient. वो बहुत ही जल्दबाजी कर रही थी, She was very impatient. उसमें धीरज नहीं था।
And she asked her husband, और उसने अपने पति से कहा, hey, सुनो, go and sleep जाओ और जाकर सो जाओ with my maidservant. मेरी दासी के साथ, Go and sleep with Hagar. हाजिरा के साथ जाके सो जाओ। Are you sleeping with Hagar क्या आप हाजिरा के साथ सो रहे हैं because of your poverty, अपनी गरीबी के कारण, because of your pain, अपने दर्द के कारण, because of your infidelity? आपकी निर्बलताओं के कारण? Infidelity and infirmity, yeah, two things. Yeah. Because of your infidelity. अपने बांझपन के कारण? Who is Hagar? हाजिरा कौन है? Because you may misunderstood when I say, are you sleeping with Hagar? क्योंकि हो सकता है आप शायद इस बात को गलत तरीके से समझे जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि हाजिरा के साथ कि आप सो रहे हैं। Hagar is a shortcut. हाजिरा जो है वो एक शॉर्टकट को दिखा रहा है, Oh, you missed it. Come on, man. एक छोटे रास्ते को। Hagar हाजिरा is carnal. वो शारीरिक है। Oh, come on, man. Help me to preach. मेरी मदद करे प्रचार करने में। Who is Hagar? हाजिरा कौन है? Hagar is not just a maid servant. हाजिरा एक दासी ही नहीं है केवल। First of all, सबसे पहले Hagar is not God's standard. हाजिरा परमेश्वर का स्तर नहीं है। Oh, come on, come on. हालेलुया। Help me. मदद करे मेरी। Hey, Abraham! अब्राहम, Your infertility और तेरा बांझपन does not mean वो मैं नहीं हूँ, you will sleep with somebody who is not God's standard. और तू किसी ऐसे के साथ सोएगा अब जाकर जो परमेश्वर का स्तर नहीं है। This is what is very important, people of God. और ये बात बहुत ही जरूरी है हमें समझना Let's परमेश्वर के not लोगों। mess up our lives. हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें। We are watching today. हम आज को ही देख रहे We are हैं। looking, we are living in present. हम केवल वर्तमान के समय में जी रहे But हैं, God is an omnipotent God. लेकिन परमेश्वर एक सर्वव्यापी परमेश्वर है। He knows the future. वो भविष्य जानता है। He knows the future. वो भविष्य जानता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you have pain, अगर आपको दर्द है, if you're suffering, अगर आप झेल रहे हैं, शैतान दर्द और सफरिंग को क्या कहते हैं? दुख। दर्द और दुख इसलिए लेकर आएगा, जानबूझ के लाएगा ताकि आप गलत फैसले लें, क्योंकि गलत फैसले हमें परमानेंट डुबा सकते हैं। टेम्पोररी प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ी बहुत दिक्कत की वजह से, थोड़ी परेशानी, थोड़ी गरीबी, थोड़ी बीमारी, थोड़ी परेशानियों की वजह से परमानेंट डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ी दिक्कतों की वजह से पूरी की पूरी जिंदगी दूसरी पटरी पे नहीं पहुंच जानी है, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जितनी जिंदगी 10 साल 15 साल खुदा के पीछे चले, खुदा की महिमा करी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पौलुस कहता है फिनिश वेल, अच्छी दौड़ तू दौड़। हालेलुया। हालेलुया। It's not about how you started your race, फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी दौड़ की शुरुआत कैसे but की थी, how you're going to finish it. लेकिन आप उसको समाप्त कैसे करने वाले We हैं। all must finish our race in a proper way, हम सभी को एक अच्छी दौड़ को समाप्त करना है, in a worthy way, एक योग्य रूप में, in a way that we must receive the crown. इस तरीके से ताकि हम उस दिन परमेश्वर से मुकुट को पाएं। All of my life I lived for God, I sacrificed everything, and in the end I messed up everything. I'm going to lose big time, people of God. That's why I request you, don't finish in massive way, but finish in a proper, worthy way. पूरे जीवन भर मैं परमेश्वर के पीछे चलते रहा, मैंने परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर की मैं साथ बना रहा, लेकिन अंत में आकर मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया और अंत में जाकर मैंने अब जाकर परमेश्वर का जो मुकुट था उसे खो दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी एक अच्छी दौड़ दौड़ें, अच्छी समाप्ति को करें। Now understand this. अब समझिए इस बात Your को, poverty आपकी गरीबी is a royal poverty वो शाही गरीबी है, because you're living for God. क्योंकि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। Your clothing, आपका कपड़े, your cheap clothes, आपके थोड़े सस्ते कपड़े, no problem. कोई बात नहीं, It is a royal cloth ये शाही कपड़े हैं, because क्योंकि you are living in integrity. आप खराई में जी रहे हैं, You are living in the holiness of आप God. परमेश्वर की पवित्रता में जी रहे And हैं God is watching और you. परमेश्वर देख रहा है। God is watching for a season. परमेश्वर एक समय में देख रहा है When आपको।
Prophet Samuel went down to anoint the next king, जब भविष्यवक्ता शमूएल अगले राजा का अभिषेक करने के लिए गया, God said to Samuel, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, you go and I will show you. तू जा और मैं तुझे दिखाऊंगा। But when you go, लेकिन जब तू जाए, don't look at his color. उसके कपड़ों को मत देखना, Don't look at his personality. उसके रंग को, उसके रूप को मत Don't look देखना, at his height. उसकी कद को मत देखना। Just go and I'll show you. और तू जा और मैं तुझे दिखाऊंगा। Now what happened? अब क्या हुआ? Jesse got all his 6 sons जेसी ने अपने 6 बेटों को बुला लिया and they dressed so well. और बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों को पहन कर वो आ गए। They were ready. वो तैयार थे। But the anointing oil did not give any sign to Samuel to anoint anyone of लेकिन वो them. अभिषेक के तेल ने कोई भी चिन्ह नहीं दिया शमूएल को अभिषेक करने के लिए। And Samuel asked और शमूएल ने पूछा the father, पिता से, do you have any other son? क्या कोई और भी तेरा बेटा है? And he just reminded. और उसको याद आया जस्सी को, He just remembered उसको याद आया he has one more son कि उसका तो एक और बेटा है who is not very prominent, जो बहुत ही प्रसिद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, who is not having good personality, और जिसका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी उतनी अच्छी whose नहीं clothes are है, not good, जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, thinking of sheep. उससे बदबू आती है भेड़ों की। And Samuel said, और शमूएल ने कहा, call him, उसको बुला ले, call him, उसको बुला ले, call him. उसको बुला ले। You know why? क्या आप जानते क्यों? You know why? क्या आप जानते क्यों? David was only one दाऊद इकलौता ऐसा था in the land of Israel इजराइल देश में who used to sing praises to God. जो परमेश्वर के भजन गीत गाया करता था। What happened in Psalms? आप भजन संहिता में क्या होता है देखिए, Psalms written by David. भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखा There are गया, more people, और भी लोग हैं उसमें, but David is known as a psalmist. लेकिन दाऊद को एक भजनकार के रूप में जाना जाता है। He wrote songs for उसने God. बहुत से गीत प्रभु He के लिए sang लिखे, songs for God. प्रभु के लिए गीत वो गाया करता था। When God wanted to make a king, you जब परमेश्वर एक राजा को बनाना चाहता था, know whom God picked up? क्या जानते हैं परमेश्वर ने किसको चुना? God picked up a worshipper. परमेश्वर ने एक आराधक को चुना। God picked up a worshipper. परमेश्वर ने एक आराधक को चुन लिया। Are you worshiping God? क्या परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? God David worshiped God even in the secret places. दाऊद परमेश्वर की आराधना गुप्त स्थानों में भी किया करता था। David worshiped God when he took his sheep for the grazing. और दाऊद जब अपनी भेड़े को चराने के लिए जाता था तब भी उसकी आराधना किया करता था। David worshiped God on the mountains दाऊद ने पहाड़ों पर परमेश्वर की आराधना की, where nobody watching him, जहाँ कोई उसको देखता नहीं था, where nobody could hear him, जहाँ कोई उसको सुन नहीं पाता when था, nobody is watching you, जब कोई आपको देख नहीं रहा when है, nobody is hearing जब you, कोई आपको सुन नहीं रहा है, in your secret room, अपने गुप्त स्थान में God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहा है, God is hearing you. परमेश्वर आपको सुन रहा Come on, है। somebody. और कोई स्तुति करे परमेश्वर की। God wants to make somebody royal. परमेश्वर कुछ लोगों को शाही बनाना चाहता है, God wants to make somebody a king. परमेश्वर किसी को राजा बनाना चाहता है, But He's looking for a worshipper लेकिन वो एक आराधक को ढूंढ रहा है who can worship and dance for God, जो परमेश्वर के लिए आराधना कर सके, नाच सके, who can jump for जो God. परमेश्वर के लिए कूद सके। God is going to make him a next king. परमेश्वर उसे अगला राजा बनाएगा। Come on, somebody. ओ कोई स्तुति करे परमेश्वर की, Somebody. कोई स्तुति करे परमेश्वर की। People feel shy dancing in the worship. आराधना में नाचते समय लोगों को शर्म आती है। People feel shy jumping in the worship. आराधना में कूदने में उन्हें शर्म आती है। But same people लेकिन वही लोग in the wedding, और शादियों में वो खूब नाचते हैं, खूब नाचते हैं। God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहा है। In the wedding, शादियों में you will break the floor. आप जमीन तोड़ देते हैं, But for God, लेकिन परमेश्वर के लिए when God wants to lift somebody, जब परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाना चाहता है, He will see, are you a worshipper? वो ये देखेगा कि क्या आप एक आराधक है। In your room, अपने कमरे में, in your car, अपनी गाड़ी में, on your Activa, अपनी एक्टिवा पे, on your bike. अपनी बाइक पे। You know, these days, आप जानते हैं इन दिनों में I put music in my मैं car अपनी गाड़ी में गीतों को लगा लेता हूँ and I cry, tears. After so many years, I'm crying and praying, crying and praying.
और बहुत सालों के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं गाड़ी में जब जाता हूँ मैं गीतों को लगा लेता हूँ और मैं आंसुओं के साथ मैं परमेश्वर के सामने आराधना करते रहता हूँ। Nobody is with me in the car. कोई भी मेरे साथ नहीं है गाड़ी में, I'm alone मैं अकेला हूँ and with God. और परमेश्वर के साथ हूँ। He was a poor man. वो एक गरीब व्यक्ति था। David was a poor lad, दाऊद एक गरीब चरवाहा था, a poor boy. एक गरीब लड़का। God picked परमेश्वर him उसने उठा लिया उसे and made him a king. और उसे एक राजा बना दिया। और दाऊद भी अगर हमारे कुछ लोगों की तरह बढ़िया नौकरी ढूंढता, ओवर टाइम लगाता, संडे को भी जॉब पे जाता, तो शायद वो एक क्लर्क बनता। इस पर ना उसने ओवर टाइम लगाया, ना उसने संडे को नौकरी की, क्योंकि वो वचन को समझ गया। मुंशी जो भी मुंशी बनता, पर खुदा का आराधना करता रहा, अपना दिमाग नहीं लगाया, पैसे नहीं देखे कहां ज्यादा हैं, और खुदा ने उसको राजा बना दिया। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। शाही गरीब से शाही गरीब से बीच में कुछ नहीं, सीधा गरीब से राजा। राजा शाही होता है या गरीब होता है? Now you got my point. अब आप समझ गए जो बात मैं कह रहा हूं। हेलो। अभी पल्ले पड़ा किसी को? यीशु मसीह कहां पैदा हुआ? चरनी में, गरीबी में, गौशाला में। हम में से कोई गौशाला में पैदा हुआ है? इतने गरीब हम नहीं है। यीशु मसीह हम सबसे गरीब। अरे हम उसके बर्थडे पे ड्रेस खरीद रहे हैं, पर उसके बर्थडे पे उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, उसके जन्म पे उसके पास जगह भी नहीं थी। गौशाला में, गाय के तबेले में, गोबर के बीच में, चरनी में। यहां अब इन्फेक्शन होने लगा, वहां पता नहीं कितने इन्फेक्शन थे। और बाइबल कहती है, और फिर खुदा ने, क्योंकि उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि खुदा मनुष्य रूप धारण करके आया, इसीलिए पिता ने उसे सब नामों में सबसे ऊंचा नाम दिया। इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिस नाम से उद्धार है, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम। कम ऑन somebody give praise। परमेश्वर को स्तुति दे, जोरदार स्तुति हम परमेश्वर को दे। पासी जी, कैसे पता चलेगा नौकरी प्रभु की ओर से है कि नहीं? कैसे पता चलेगा मैं हागर वाला काम कर रहा हूं, शॉर्टकट अपना रहा हूं? एक ही चीज है, आपका अनॉइंटिंग गया, आपकी सेविकाई गई, तो आप जो कर रहे हैं वो खुदा की ओर से नहीं है। अगर अनॉइंटिंग बढ़ी, अगर काम और बढ़ा, अगर सेविकाई आपकी ओर बढ़ी, तो 100% जो आप कर रहे हैं वो खुदा की ओर से है। सिंपल, वेरी सिंपल। इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर गॉड, इट मीन इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। अगर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं बच रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाद में जब बेटा मिला तो अब्राहिम जी बिजी हो गए अपने बेटे में, हम सबको पता है। खुदा को वो तक नहीं भाया। हम देखते हैं परमेश्वर के बहुत प्रेमी रूप को। यहां पर उग्र रूप देखिए, एक खुदा जो प्रेम करता है, जिसने वादा पूरा किया, जिसने बेटा दिया, वो कहता है ले आ इसको मुराया पर्वत पे हुला लाला कर दे बलि इसको। क्यों बलि? कि भाई तू मुझसे प्यार करता था, मेरे गीत गाता था, मेरे सम्मुख रहता था। आज कुछ लोगों का इजहाक ये फोन बन गया है, कुछ लोगों का इजहाक उनका फियांसे बन गया है, कुछ लोगों का इजहाक उनका अपना परिवार, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी नौकरी बन चुकी है, और उनके पास टाइम नहीं है कि वो खुदा के साथ बैठ सके। साइन है, अगर आपकी दुआ बंद, आपकी सेविकाई बंद और अभिषेक बंद, तो जो आप कर रहे हैं वो खुदा की ओर से नहीं है। वो शॉर्टकट है जो आपके दिमाग से उपजा है, वो शॉर्टकट है जो आपसे आया है, और बहुत जल्दी
ये शॉर्टकट आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। कितने लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं? हर लालच शुरुआत में अच्छा लगता है। लालच की एक निशानी है और लालच का पेट कभी भरता नहीं। वो शरीर है, वो शरीर से उत्पन्न होता है, पर वो अंत में बहुत तकलीफ देता है। कितने लोग सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? I appreciate Mary and Joseph. मैं सराहता हूं मरियम और यूसुफ को। They did not use their own mind. उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। What they did? उन्होंने क्या किया? Mary and Joseph, मरियम और यूसुफ they did few things. उन्होंने कुछ बातें की। Number one, सबसे पहले they surrender to the plan of God. उन्होंने परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को। क्या कर दिया? समर्पित। Many people, they don't surrender to God's plan. बहुत से लोग परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित नहीं करते अपने And आप that's why को, they suffer. और इसीलिए वो दुख में रहते हैं। Our plans are greedy plans, हमारी योजनाएं थोड़ी लालच भरी योजनाएं हैं, fleshy plans, शारीरिक योजनाएं हैं, fleshy, शारीरिक fleshy. चकाचौंध वाली योजनाएं हैं। It looks so good. वो बहुत ही अच्छी दिखती है हमें। Wow, yeah. Lot of money. Yeah. हाँ, बहुत सा पैसा मुझे मिलेगा, बहुत चकाचौंध वाली योजनाएं। But the end is very dangerous. लेकिन जो अंत है उसका वो बहुत ही भयानक है। Number two, दूसरी बात, listen very carefully. सुनिए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? How many are listening? Yeah. So this pain and suffering, they refine you and refine the purpose of your life. ये दर्द और पीड़ाएं आपको तराशती हैं और आपके जीवन के मकसद के लिए आपको तराशती हैं। Number two, दूसरी बात, अभी मैंने एक ही पॉइंट खत्म किया 2 हफ्ते में, 5 ही पॉइंट थे, लगता है मैं पूरे क्रिसमस पे वही कर दूंगा। Number two, the दूसरी danger बात। of permissive plans. दिया हुआ। अनुमति दी गई योजनाओं का खतरा। Number two, दूसरी बात, the danger of permissive plan. अनुमति दी गई योजनाओं का खतरा। Let's read Proverbs chapter 14 verse 12. नीति वचन 14 का हम 12 पढ़ेंगे And I'll finish with this. और मैं इस वचन के साथ समाप्त करूंगा। Yeah, permissive, the danger of permissive plans. जो खतरा है अनुमति दी गई योजना में, नीति go वचन 14 का 12। ऐसा मार्ग है हाँ। जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में Yes. मृत्यु ही मिलती है। Yeah, wait a minute here. Everybody, look it on the screen. सभी लोग स्क्रीन पर देखिए। There is a way which seemeth right unto a man. ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मृत्यु ही ही मिलती है। हम सब लोग एक साथ बोलेंगे, ले आइए पढ़े। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। What is permissive plan? अनुमति दी हुई योजना का मतलब क्या है? When we don't walk in the perfect plan of God, we automatically slip into the permissive plan of God. जब हम परमेश्वर की सिद्ध योजना में नहीं चलते हैं तो हम अपने आप ही परमेश्वर की अनुमति दी गई योजना में फिसल जाते हैं। And what is permissive plan of और God? अनुमति दी गई योजना का मतलब क्या है? Listen very carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से। God's perfect plan requires surrender. परमेश्वर की सिद्ध योजना में समर्पण की आवश्यकता होती है, But in permissive plan, we choose to follow our own desires. लेकिन अनुमति वाली योजना में हम चुनाव करते हैं कि अपनी इच्छाओं में हम चलेंगे। Oh, you missed it. Come on. आपने खो दिया इसे। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। In perfect plan of God, परमेश्वर की सिद्ध योजना में we surrender like Mary and Joseph. हम मरियम और यूसुफ के समान समर्पित कर देते हैं। In permissive plan of God, अनुमति वाली योजना में परमेश्वर की we follow our own desires. हम अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं। What I'm looking for, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, what I always wanted to achieve. मैं हमेशा से क्या हासिल करना चाहता था। In permissive plan, अनुमति वाली योजना में we seek comfort. हम आराम देखते हैं। मरियम और यूसुफ ने आराम नहीं देखा। पता है पास्टर, वो जॉब ना एक्चुअली बहुत आरामदायक है, इसलिए मेरे को उधर जाने देते। मस्त आराम देते वो लोग मेरे को, बहुत आरामदायक है। इतना आराम है कि मैं परमानेंट आराम को भी छोड़ सकता हूं उसके लिए। इतना आराम है। आप देखो ना पास्टर, 10 साल में कितना स्ट्रगल किया, आपने देखा ना, कितना गरीबी,
कितना तंगी, कितना पैसे का प्रॉब्लम हुआ। आप हंस रहे पर आप जानते मैं सत्य बोल रहा हूं। मरियम यूसुफ भी ये बात बोल सकते थे, हर एक वो इंसान ये बात बोल सकता है। इन परफेक्ट विल, सिद्ध योजना में परमेश्वर की, यू विल सफर, आप दुख झेलेंगे, यू विल हैव पेन, आपको दर्द होगा, यू विल हैव सफरिंग, पीड़ाएं होंगी। बट परमिसिव प्लान, लेकिन अनुमति वाली योजना में नंबर 1, सबसे पहला कंफर्टेबल, आरामदायक होगा वो। perfect plan you have to go, permissive plan will come to you. सिद्ध योजना में आपको जाना पड़ेगा, अनुमति वाली योजना आपके पास खुद आएगी। आप बोलेंगे अनुमति योजना क्या पास्टर, हम समझ नहीं पा रहे, इसको थोड़ा सा खुल के बताइए। खुल के बता रहा हूं। अनुमति मतलब बेचारे ने, इनको छोड़ दो, जो ये करना चाहते वो करने दो। अनुमति मतलब परमेश्वर ने छोड़ दिया, हार मान लिया और बोला अभी तेरे को जो करना वो कर, तुझे जैसे जीना वैसे जी। दैट इज परमिसिव प्लान। इसका मतलब है अनुमति वाली योजना। इसीलिए लिखा उसमें वचन में, नीति वचन में क्या पढ़ा हमने अभी? ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता ऐसा है। मार्ग है जो मनुष्य को, परमेश्वर को नहीं, किसको? मनुष्य को क्या जान पड़ता है? ठीक लगता है। लेकिन अंत में उसके क्या है? मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु किस चीज की? दर्शन की, बुलाहट की, अभिषेक की। सुनिए इसे, परमिसिव प्लान, अनुमति वाली योजना, यू विल सीक कंफर्ट, आप आराम देखेंगे उसमें। बट इन परफेक्ट प्लान, लेकिन सिद्ध योजना में यू विल सीक टू सर्व गॉड, आप परमेश्वर की सेवा करना ढूंढेंगे। जैसे ही एक बंदा परमेश्वर की योजना से अपनी योजना में शिफ्ट होता है, उसको सिर्फ एक ही चीज ढूंढने में मिलती है, आराम है क्या, कंफर्ट है क्या, मिलेगा क्या, होगा क्या, मैं आराम से तो रहूंगा ना, आराम चाहिए। पर जैसे ही वो बंदा परमेश्वर के लिए दौड़ना चालू करता है, उसको आराम वाराम कुछ नहीं, उसको एक ही चीज दिमाग में होती है, खुदा की सेवा कैसे करूंगा, खुदा की सेवा किस हालातों में कर सकता हूं। हाँ, फिर तो हम झूठे हो गए। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। ये तो झूठा हो गया फिर गीत, बिल्कुल झूठा हो गया। एक और कोरस बताना, इसका एक लाइन और है। परमिसिव प्लान, वी सी कंफर्ट, अनुमति वाली योजना, हम इसमें आराम देखते हैं। फ्लैशी जॉय, शारीरिक आनंद। पहले आनंद अभिषेक से, अन्य भाषा से, वरदानों से मिलता था, अब आनंद कपड़ों से मिलने लग गया। अब आनंद चीजों में मिलने लग गया है। सच बता रहा हूं, एक असली मसीह को कभी भी वस्तुओं में आनंद मिल ही नहीं सकता। वस्तुएं आपके पीछे भागेंगी, कपड़े आपके पीछे भागेंगे, धन दौलत आपके पीछे भागेगी, पर आपको उनको देखने का भी मन नहीं करेगा। सच बता रहा हूं, गाड़ियां लाइन से लाइन आपके पीछे भागेंगी, पर आपको उन गाड़ियों से कोई वास्ता नहीं होगा। एक मसीह को वस्तुओं में नहीं, परमेश्वर में आनंद मिलता है। खाने पीने में नहीं, खुदा की इच्छा को पूरा करने में आनंद मिलता है। कम ऑन, मैं किसी से बात कर रहा हूं आज। हालेलुया, आमेन। इन परमिसिव विल, द नेक्स्ट थिंग यू विल सीक टू कंट्रोल। अनुमति वाले जीवन में आप अगली चीज ढूंढेंगे, नियंत्रण करना। वी रिस्क स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ गॉड्स विल फॉर परमिसिव विल। हम अनुमति वाली योजना में इस बात का फायदा उठाएंगे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाने का कदम उठा लेंगे। Permissive plans may offer temporary satisfaction but often lead to long-term struggles. अनुमति वाली योजना में अक्सर ऐसा होगा कि कुछ क्षण भर की परेशानियों से आजादी मिल जाएगी, लेकिन हमेशा का बर्बादी होगी। Mary and Joseph, मरियम और यूसुफ, they have followed their own minds. They could have followed their own minds. उन्होंने हो सकता था
था कि वो अपने दिमाग के अनुसार चल सकते थे। Joseph could quietly divorce his Mary. और यूसुफ बड़ी आराम से चुपचाप से वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। Mary could have resisted God's call. हो सकता है कि मरियम ने परमेश्वर की बुलाहट को मना कर दिया होता। She could have said to God, no, I cannot do this. I'm a virgin girl. I have a plan. Say, I have beautiful plan for my wedding day, for my wedding gown, for my husband, for my fiance. I'm not going to accept this plan. Look at for some other girl. But Mary said, let it unto me according to your word, Lord, because I'm not seeking thing. I am seeking to serve you. I'm seeking to surrender to you, God. मरियम ये कह सकती थी परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकती ये, क्योंकि मैंने तो अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है, मैंने अब सपने देखे कि मेरी शादी ऐसी होगी, मेरा पति ऐसे होगा, हम इस जगह पर जाएंगे। लेकिन उसने इसके बजाय परमेश्वर से ये कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मैं तेरी इच्छाओं के प्रति समर्पित अपने आप को कर देती हूँ और मेरे जीवन में उसकी सिद्ध योजना पूरी होने पाए। The truth can disturb you. सच्चाई आपको शायद रोक सकती है, But what I am preaching can disturb you right now. लेकिन जो मैं आपको इस समय प्रचार कर रहा हूं, अगर आपको ये रोकती है, आपको जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर सकती है, आपके चेहरे को नीचे कर सकती है, आपके कानों को चुभ सकती है, पर मैं एक बात का वादा करता हूं, ये प्रचार और ये सत्य आपको डिस्टर्ब तो कर सकता है, आपको परेशान तो कर सकता है, पर आपको कभी भी हारने नहीं देगा। Come on, इससे बड़ा हो सकता है। Yes, It will never praise allow God. you to be Amen. defeated. Amen. वो आपको कभी हारने नहीं देगा। It will never allow you to go out of the will of God. ये आपको कभी परमेश्वर की सिद्ध योजना से बाहर जाने नहीं देगा। You can tell me today, you can tell yourself in your heart today. आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि हाँ, आप मुझे कह सकते हैं कि आप आज बहुत ही सख्ती कर रहे हैं। Pastor is preaching to me. पास्टर मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। He's preaching to me. वो मुझे प्रचार कर रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। He's telling me. वो मुझे बोल रहे हैं। You may think this today, आप आज ये सोच सकते हैं, but tomorrow लेकिन कल you will see the victory. आप जय को देखेंगे। You will see yourself aligned with the purpose and vision of God. आप अपने आप को परमेश्वर की योजना और दर्शन के साथ चलते हुए देखेंगे। Mary and Joseph could resist God's call. मरियम और यूसुफ भी परमेश्वर की सिद्ध योजना और बुलाहट के लिए मना कर सकते थे, But they aligned their life with God's will. लेकिन उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के साथ मिला दिया। So what I want to tell you in the end तो today, बात मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ, my last closing statement for this मेरी day. आज के दिन के लिए आखिरी बात जो है, When you want to walk in God's perfect plan, जब आप परमेश्वर की सिद्ध योजना में चलना चाहेंगे, the only thing you will seek is to surrender to God and His will. एक ही बात आप ढूंढेंगे, उसकी इच्छा के प्रति समर्पित होना और उसमें चलना। You will surrender. आप समर्पित कर देंगे। You will surrender. आप समर्पित कर देंगे। You will say like Mary, आप मरियम के समान let it कहेंगे, be unto me according to your word. मुझे तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Choosing the permissive path may feel easier, people of God. आरामदायक और अनुमति वाली योजना शायद आपको थोड़ी आराम वाली लगे, But walking in God's perfect plan लेकिन परमेश्वर की सिद्ध योजना में चलना will bring eternal and purposeful joy in your life. वो आपके जीवन में एक अनंत काल की और हमेशा के आनंद को लेकर आएगी। Hallelujah. हालेलुया। The truth can hurt you, सच्चाई आपको परेशान कर सकती but है, it will never defeat you. लेकिन वो आपको कभी पराजित नहीं करेगी। It is not easy to listen the truth. सच्चाई सुनना आसान नहीं है। Maybe God is talking to you. परमेश्वर हो सकता है आपसे बात कर रहा है। Maybe God is talking to you. अगर आपको लग रहा है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, Allow Him to talk to you. उसे अनुमति दे कि वो आपसे बात करे। It is disturbing you, वो आपको परेशान कर रहा but है, it will never defeat you. लेकिन वो आपको कभी हारने नहीं देगा। If you're walking in the permissive way, अगर आप अनुमति वाली योजना में चलेंगे, you are seeking where is comfort, तो आप ये ढूंढे कि आराम कहाँ मिलेगा मुझे, where I don't have to work hard. जहाँ पे मुझे मेहनत ना करना पड़े। I am looking for comfort. आराम 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 ढूंढूंगा हर जगह। David and Daniel, they did not look for comfort. और उन्होंने 10 सालों तक योजना आराम नहीं ढूंढा। दाऊद और दानियल ने कभी आराम नहीं ढूंढा। यीशु ने आराम नहीं ढूंढा। दाऊद ने आराम नहीं ढूंढा। David did not look for
the comfort life. दाऊद और दानियल ने कभी भी आराम नहीं ढूंढा अपने जीवन Daniel में। did not look for a comfort life. दानियल ने आराम वाले जीवन को नहीं ढूंढा। Nebuchadnezzar said, नबूकदनेस्सर ने कहा, anybody worship any other god, I will kill him. कोई भी जो दूसरे परमेश्वर की आराधना करेगा मैं उसे मार दूंगा। David, Daniel. और दानियल He opened the windows उसने अपने खिड़कियों को खोला towards Jerusalem यरूशलेम की ओर and he prayed again. और से फिर से प्रार्थना And he की, prayed again. फिर से प्रार्थना की, And he prayed और again. फिर से प्रार्थना की। Jesus, यीशु मसीह, Jesus, यीशु मसीह, Jesus यीशु मसीह did not come to wear good clothes. वो अच्छे कपड़ों को पहनने के लिए नहीं आया था। Jesus यीशु मसीह did not come to look handsome. वो हैंडसम दिखने के लिए नहीं आया था। Jesus यीशु मसीह did not come to look for a comfort life. एक आरामदायक जीवन ढूंढने नहीं आया था। Not a good car. एक अच्छी गाड़ी चलाने नहीं आया था। Jesus came to die. यीशु मरने के लिए आया। Jesus came to take the pain. यीशु दर्द उठाने के लिए आया। He came to take the shame. वो शर्म उठाने के लिए आया। He came to take the struggle. वो परेशानियों को उठाने के लिए आ गया। If you have God in your womb, अगर आपके गर्भ में परमेश्वर है, if you have God in your womb, अगर आपके गर्भ में परमेश्वर है, oh Mary, हे मरियम, हे मरियम, you are going to have lot of pain. तू बहुत से दर्द को उठाने वाली You are है। going to face lot of shame. बहुत से शर्म का सामना तू करेगी। You are going to see lot of तू struggle. बहुत से संघर्षों को देखेगी। Because you are not carrying a baby, you are carrying a creator. क्योंकि तू एक बच्चे को लेके नहीं चल रही है, तू रचयिता को, सृष्टिकर्ता को लेकर चल रही है अपने अंदर। In your womb, तेरे Mary, गर्भ में not a baby, एक बच्चा नहीं है, whole creation, पूरी रचना है, whole creator पूरी रचना is in है, your womb, Mary. तेरे गर्भ में है And मरियम। because God is inside you, और क्योंकि परमेश्वर तेरे अंदर है, you will have pain, तू दर्द उठाएगी, you will have तू suffering, झेलेगी, you will have struggle. और तेरे सामने परेशानियां But आएंगी। Mary, लेकिन मरियम, you will be called a blessed woman upon the face of the earth. लेकिन तुझे पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा धन्य स्त्री माना जाएगा मरियम, Because you're carrying God. क्योंकि तू परमेश्वर को लेके चल रही Where you're है। going to carry plan of God, जब आप परमेश्वर की योजना को लेके चलेंगे, you are going to have rejection. आपके सामने आपको नकारा जाएगा, You will be taken as a bad person. आपको बुरा व्यक्ति करके माना जाएगा, You will be misunderstood. आपको गलत समझा जाएगा, You may look poor, आप शायद गरीब दिखे, but लेकिन सुनिए, heaven is going to give you and let you and call you as a blessed woman and man. लेकिन स्वर्ग आपको एक धन्य स्त्री, धन्य पुरुष करके कहेगा और पुकारेगा।